उसे?
Hello, madam. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning to each one of you. Good morning. Very good morning. Very good morning. Hello, madam. Madam Pooja, good morning. Pooja, madam is there? Hello, Pooja, madam. Hello, Pooja, madam. Participants are requested to mute your mic, please. Sir, now you are presenter. Yes, thank you so much for making me presenter. Welcome, sir. Welcome, welcome. Just I'll. Hello, Pooja, Yes. madam. Hello. सभा से राधिका. पूजा मैडम नहीं कर फोन करो. हेलो पूजा मैडम. लॉगिन होना के लिए क्या. ओके ओके मॅडम. ओके सर. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन. आवाज येतोय? मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आवाज आ रहा है क्लियर?
हाँ आवाज आ रहा है, क्लियर आवाज आ रहा है, आपका Right. आवाज क्लियर आ रहा है. Today we are invited as degree students also. Okay. Let us see how many they will join. Okay, so should we wait for another 3 minutes? No. We'll start. Okay. Meanwhile, they will join. Okay, sir. Now the number is around 100. Okay. Even you Okay, can sir, we see will start. from your desktop also how many participants are present in the meeting. Yeah. So I request Miss Pooja to please start the session. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. So, firstly, hello everyone. A very good morning, all of you. I, Miss Pooja Dale. It's my pleasure to welcome everyone to our beautiful session today. So, we all are here presented for the day second of the workshop on the behalf of Maharashtra Poly Diploma Institute. With a beautiful day, I offer my special regards to the Ratish Dikshit sir, and also I convey my regards to all the participants for joining the session on the time. In yesterday's session, Sir had covered all the concept, how to set up the medical store and the conceptual points regarding the business pharmacy profession. Yesterday's session was too interesting and very informative. So hope so. So today's we are going to discuss on power of selling skills. Hope so. Like yesterday's session, today's session also will be fruitful for all. So take active part and enjoy the session and start a day by saying ourselves that I will success in life not immediately but definitely. So keep in mind that everything is possible when you believe. So thank you one and all. Now I hand over the session to the Ratish Dikshit sir. Have a great session sir. Thank you. Over to you sir. Okay, thank you so much, Pooja, for that wonderful thought of believing yourself. And it is so very important that you need to believe if you want to achieve something. Life में अगर आपको कुछ पाना है तो सबसे the start सबसे important चीज है आपको believe करना है आप अपने आप पर. आपको दुनिया आप पर बिलीव ना करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपनी कैपेबिलिटी पर अपने स्किल्स में बिलीव करना है. एंड फॉर दैट मैटर यू विल बी अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल इंट्रोडक्शन. तो आज का सेशन स्टार्ट होने से पहले कल जो हम लोग ने सिखाया था, किसी को कुछ क्वेश्चन, आफ्टर थॉट, any kind of doubts, you have one more opportunity. आपको एक और सुनारा एक opportunity मिल रही है अपने doubts clear करने का. We will wait for 2 minutes. अगर किसी को अपना doubt है तो वो clarify कर सकता है, नहीं तो हम अपना session start करेंगे. Okay sir. Anybody wants to clarify? कोई doubt, कोई after thought, घर जाने के बाद आपको कोई कुछ सोचा आपने कि आपने विजुलाइज किया कि आपकी मेडिकल शॉप सेटअप हो रही है. आपका कल से आपको एक्चुअली सोचना शुरू कर देना चाहिए. आपको सपने आने शुरू हो जाने चाहिए, और वो सपने ऐसे आने चाहिए कि आपको नींद ना आए, तभी आप अचीव करोगे. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं होना चाहिए सेशन खत्म हुआ और सब खत्म, नहीं, उसको इंप्लीमेंट करना है. इम्प्लीमेंटेशन इज द की. और आप अगर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अगर 20% भी लोग यहां पर हैं वो इंप्लीमेंट कर देंगे तो सेशन आई विल बी हैप्पी. Mr. Paul sir would be happy that this session was fruitful. Okay. For today's session, again we are senior faculty members are present. Yes. Mr. Muratkar, Dr. Sanjay Dudmal, Dr. Thakre, and Dr. Ghodke, Vilas Karbari, and some faculty members from degree staff also. So a very good morning to each one of you, and it is my pleasure to have you guys on this session. Thanks for joining this session. Thank you so much. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. आज का जो सेशन है दोस्तों, so good morning to each one of you once again, and I want you guys, मेरी आपसे गुजारिश है आज फिर कि आप इस सेशन के लिए अपनी आंखें,
अपने कान खोल दें। 1.25 घंटे के लिए अपनी आंखें और अपने कान खोल दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हो सकता है आपकी जिंदगी भी बदल दे। तो अगर आप इफ यू आर रेडी एंड इफ यू आर जो मैं बात कहने वाला हूं नेक्स्ट 45 या 1 घंटा या 1.25 घंटे में, आप उसे अगर आप समझ गए तो हो सकता है दिस कुड बी द गेम चेंजर, दिस कुड बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है द पावर ऑफ सेलिंग स्किल्स। नाउ सबको पता है सेलिंग क्या होता है, राइट? सेलिंग, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग, राइट? तो सबसे पहले आपको समझना है कि सेलिंग अलग चीज है और मार्केटिंग चीज अलग है। बी वेरी क्लियर, राइट? सेलिंग होती है कि हम कस्टमर्स के पास जाकर फेस टू फेस उनसे बात कर कर हम अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट? उसको सेलिंग बोलते हैं, अगर हम शुद्ध हिंदी में आपको समझाएं। मार्केटिंग ये चीज है जहां पर आप मार्केटिंग टीम होती है, एक टीम होती है जो ब्रांड मैनेजमेंट की टीम होती है, उसके बारे में हम कल डिटेल से बात करेंगे। वो आपके लिए इंगेजमेंट प्लान बनाती है, आप उसको जाकर अपने कस्टमर से बेचते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, सेलिंग स्किल्स। अब सेलिंग अगर आपको करना है दोस्तों, तो आपको उसके लिए स्किल्स चाहिए। अगर आपको अभी संक्रांति खत्म हो गई, राइट, 2 दिन पहले, अगर आपको पतंग उड़ाना है आकाश में, तो आपके लिए स्किल चाहिए। स्किल मतलब आप कैसे पतंग को ऊपर ले जाएंगे, कैसे मंजा जिसे बोलते हैं मंजा, वो कैसे बांधेंगे, कैसे पतंग को गोता मारेंगे, कैसे काटेंगे पतंग को, उसके लिए भी आपको स्किल चाहिए, राइट? दूसरा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप खाना बनाना चाहते हैं तो खाना बनाने के लिए आपको दो चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस है। एक, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि खाना कैसे बनाना है, राइट? खाने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे। अगर आप मान लीजिए मटर पनीर बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीज चाहिए, वो नॉलेज होनी चाहिए, राइट? और दूसरी आपको स्किल चाहिए कि आपका खाना कैसे अच्छा बने, उसके लिए आपको स्किल्स चाहिए। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन नॉलेज एंड स्किल्स। स्किल्स आर डिफरेंट। आप किस तरह से आप उस चीज को अच्छी तरह बेचते हैं, वो टेक्निक आप कैसे अप्लाई करते हैं, उसकी वजह से आपका प्रोडक्ट बिकता है। तो उसको बोलते हैं स्किल्स, ठीक है? नाउ इस just give me a moment, I will open the presentation. Yes. Are you see the slides? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Can everybody see the slide? Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर आप में स्किल्स हैं किसी चीज के लिए, तो आप बहुत अच्छा काम करेंगे और उसका आपको लाभ या बेनिफिट भी बहुत मिलेगा, राइट? एंड दैट इज द रीजन आई से
power of selling skills. Now in my next slide आपको मैं एक उदाहरण देने की कोशिश करता हूं। अगर आप मान लीजिए कुछ सामान खरीदने गए और आप सामान खरीदने गए और आपको उस शॉपकीपर ने वहां पर आपको कुर्सी ऑफर किया, आपको बैठाया और 10 मिनट बाद आपको इंगेज किया, एक चाय या कोल्ड ड्रिंक लाए, तो आप क्या फील करेंगे? आपको लगेगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस हुआ था खरीदने का वो बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस हुआ था। तो ये स्लाइड बोलना चाह रही है कि 80% ऑफ कस्टमर्स फील द बाइंग एक्सपीरियंस, जो कंपनी आपको मुझे खरीदते वक्त जो एक्सपीरियंस दिलाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आपको आकर चाय देता है और अगर देखता है कि आप खरीदने वाले हो तो फिर आपके लिए समोसा भी ऑर्डर होता है। तो वो जो आपको मजा आता है, जिसे बोलते हैं एक्सपीरियंस होता है, वो आप जिंदगी भर याद करते हो और वो हर कस्टमर चाहता है, ऑफ बाइंग एक्सपीरियंस। सेकेंड पॉइंट इज how do you create a wow experience with the customer? Now ये आप मतलब कस्टमर को बोलते हैं गुड, जैसे गुड कस्टमर है, राइट? द कस्टमर फील्स गुड, द कस्टमर फील्स एक्सीलेंट, बट बियॉन्ड एक्सीलेंट इज वाओ, क्या बढ़िया, मुझे मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, राइट? हाउ डू यू क्रिएट अ वाओ एक्सपीरियंस विद द कस्टमर? वो बहुत जरूरी है और वो करना, वो वाओ एक्सपीरियंस लाना आसान नहीं है दोस्तों। आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अब बहुत से फैक्टर्स होते हैं, और अगर आप ये अचीव कर सकते हैं, पीपल विल कम एंड कीप बाइंग योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट आपसे खरीद लेंगे, राइट? तो वाओ एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जिन लोगों को सेल्स में जाने का मतलब एक सपना है और वो सोचते हैं कि सेल्स में मुझे जाना है, उनके लिए, और जो लोग मेडिकल शॉप खोलेंगे, वो कस्टमर्स उनको आएंगे उनके शॉप, तो ये उन लोगों के लिए ये selling skills are so very important, personally also and professionally also it can help you. So wow experience is so very important for a customer. And how do you create a wow experience? Today आज जो modern customers हैं, उनको कैसा सेल्स पर्सन चाहिए? वो ऐसा सेल्स पर्सन होना चाहिए जो कनेक्टेड है, मतलब हर बिकॉज हर कस्टमर डिफरेंट है, राइट? अगर आप कुछ बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एक दवाई बेच रहे हैं, राइट? आप जाकर डॉक्टरों से मिलते हैं तो आपको लगता है कि हर डॉक्टर अलग है, एक डॉक्टर की लाइकिंग अलग है, एक डॉक्टर को स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्ट है, तो आपको थोड़ा स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज होनी चाहिए, राइट? आप एक डॉक्टर है जिसको क्रिकेट पे इंटरेस्ट है, तो आप उसको थोड़ा क्रिकेट के बारे में भी बात कर सकते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आप अगर आज इलेक्शंस, पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप पॉलिटिक्स में भी थोड़ा उसे अगर आप समझते हैं कि वो कस्टमर पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्टेड है, तो आप उस कस्टमर से पॉलिटिक्स भी बात कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि वो कस्टमर सोचता है, देखिए आखिर कस्टमर भी इंसान है, कस्टमर इज ऑल्सो एन इंसान। तो आप वो हर वक्त पेशेंट देखता रहता है, तो वो बोर हो जाता है पेशेंट देखने का, राइट? तो आप आते हो, आप उससे थोड़ा व्हाट आई मीन टू से, आप उससे थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेते हैं,
तो वो रिफ्रेश हो जाता है, और क्योंकि वो रिफ्रेश हो जाता है वो सोचता है यार ये बंदा बढ़िया आदमी है, यू नो, ही सीज यू एज अ सोर्स, रिलायबल सोर्स पर्सन। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है आपको कनेक्टेड रहना, यू हैव टू बी अ कनेक्टेड सेल्स पर्सन। अभी गौर कीजिए सब लोग, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर, अगर आप सेल्समैन बनना चाहते हैं और आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप में ये 3 क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, आजकल लोग सुनते कम हैं। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वालिटी है, आप एज अ सेल्स पर्सन यू नीड टू लिसन टू पीपल। अगर आप सुनेंगे तो आप उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, आप उनको क्या चाहिए आप समझेंगे। तो द फर्स्ट क्वालिटी इफ एज अ सेल्स पर्सन you need to have is listening capability. That's point number 1. Point number 2, जब वो आपकी दुकान में आता है, राइट, और मान लीजिए उसके 1-2 बच्चे भी हैं, तो अगर बच्चे उसे तंग करेंगे तो वो शॉपिंग नहीं कर पाएगा, राइट। तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि आप उन्हें इंगेज कर दें, कहीं पर उनके लिए कुछ टॉयज रख दें या कुछ कर दें, क्योंकि बच्चे जाकर, जैसे बच्चे खेलने जाएंगे तो पेरेंट्स के पास टाइम रहेगा, वो आपकी प्रोडक्ट्स को देखेंगे। तो इंगेजिंग एट द राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड पॉइंट, हर बारीकी का डिटेल आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है। अगर कस्टमर कुछ बात कर रहा है तो आप समझिए वो क्या कहना चाह रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। अटेंशन टू डिटेल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो ये 3 क्वालिटीज ऑफ अ सेल्स पर्सन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। One is listening, second is engaging at just the right time, and third is demonstrating attention to detail. Very, very important and very, very critical. Yes, sir. Paul, sir, am I going fast? Am I fine? Yes. Nice. No, sir. No, sir. Correct, sir. It's good, right? You are able Well, to. very Yes. well going on, sir. Fantastic. Fantastic. Thank you. Thank you for the feedback. Okay. Now coming to the next slide, that is the reason, इसीलिए role of selling skills becomes so important. आप कुछ बेच रहे हो, लेकिन आपके पास अगर स्किल्स नहीं है तो आप वो चीज अच्छी तरह नहीं बेच पाओगे कस्टमर को। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, मैं आपको फार्मा में एक उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूं। आजकल नए प्रोडक्ट्स, जैसे कल लक्ष्मी ने पूछा था कि नए प्रोडक्ट्स आ नहीं रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स आ नहीं रहे हैं तो साइंस ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं, राइट, लिमिटेड साइंस बात करते हैं। तो इसीलिए जब आप साइंस नहीं बात कर रहे हैं डॉक्टरों से, तो आपको सेलिंग स्किल्स आना बहुत ही जरूरी है। इट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल दैट यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलिंग स्किल्स, क्योंकि आप साइंस आप ज्यादा नहीं बात करते हो। अगर आपके पास नए प्रोडक्ट्स आते, नए मॉलिक्यूल्स आते, तो आप जाकर डॉक्टरों से साइंस बात करते, बट आजकल वो हो नहीं रहा है, तो आप कैसे डॉक्टरों को बेचोगे? वन ऑफ द वेज इज हैविंग द राइट सेलिंग स्किल्स। नाउ व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव? हम यहां पर 4 चीजें समझेंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अपना मतलब किसी के बारे में मत सोचिए, बस मेरा गुजारिश है, आप ये जो मैं पढ़ा रहा हूं इसमें आप ध्यान दीजिए, आपकी लर्निंग्स बहुत अच्छी होंगी, राइट। फर्स्ट इज यू विल अंडरस्टैंड द बाइंग एंड सेलिंग साइकिल। मैं आपको एक मॉडल दिखाऊंगा, उसमें बाइंग कैसे, जो आदमी बाय करता है उसकी क्या साइकिल होती है, और जो सेल करता है उसमें क्या साइकिल होती है। वो पॉइंट नंबर 1। आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट को वो बाय करें।
आप अपने प्रोडक्ट को कैसे इफेक्टिवली उसको पोजीशन कर सकते हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है। आप प्रोडक्ट मत बेचो दोस्तों, ना 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 ना, आप प्रोडक्ट मत बेचो, आप जाकर सॉल्यूशंस बेचो। जब आपके पास मान लीजिए केमिस्ट शॉप है, तो आप उसको उसको मान लीजिए डायरिया है या वोमिटिंग है, तो आप उसको क्या कर रहे हो, वो बीमार है, आप उसको सॉल्यूशंस दे रहे हो, राइट? नेवर सेल अ प्रोडक्ट, सेल सॉल्यूशंस, ऑलवेज रिमेंबर। और आप अगर किसी को सॉल्यूशन बेचेंगे तो आपका प्रोडक्ट will definitely sell, right? And most important is जब आपने जब प्रोडक्ट प्रेजेंट कर लिया, अपना सॉल्यूशन बता दिया, आप सेल्स को कैसे क्लोज करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना लास्ट में, याद कीजिए गुड नाइट, जब हम किसी को रात में अगर मिलते हैं तो 8-9 बजे और हम जाने बोलते हैं गुड नाइट। वैसे ही जब आपको सेल्स को क्लोज करना है तो आपको करना है हाउ डू यू क्लोज सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक कला है और वो कला आपको सीखना है। तो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। नाउ द पॉइंट नंबर 1, अब आप सुनिए, कस्टमर बीच में है, राइट? इसको बाइंग साइकिल बोलते हैं। तो पहला आपको उसको एनालाइज करना है कि इसकी नीड क्या है, ये क्यों खरीद रहा है। अगर वो मेरी दुकान में आता है तो आप पूछोगे, आप वो अगर मान लीजिए उसके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप उसको पूछोगे भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? तो बोलेगा भाई मेरा पेट दर्द कर रहा है, मुझे एसिडिटी है। अच्छा, आपको एसिडिटी है, तो आपने उसकी नीड आइडेंटिफाई कर ली। आपने आइडेंटिफाई की कि इसमें प्रॉब्लम है, कि इसमें एसिडिटी है। एसिडिटी के लिए आप क्या करोगे, उसको 2-4 ऑप्शंस बताओगे। इसको बोलते हैं एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। मेरे पास जेलोसिल भी है, मेरे पास आयुर्वेदिक का भी ड्रग है, मेरे पास ये भी है, आप क्या लेना चाहोगे? उसको बोलते हैं गिविंग ऑप्शंस और एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस। थर्ड पॉइंट, कस्टमर सोचेगा नहीं यार मैं आयुर्वेदिक क्यों करूं, मुझे ट्रस्ट नहीं है, कुछ चैलेंज हो जाएगा, आप मुझे जेलोसिल दे दो। तो वो क्या कर रहा है, अपने डाउट्स, एलिमिनेटिंग डाउट्स, वो अपने डाउट्स को निकाल रहा है। आपने उसको 4 ऑप्शंस दिया, उसने एक ऑप्शन लिया कि मुझे आप जेलोसिल दे दो, क्योंकि वो ट्रस्टेड है, लोगों का कॉन्फिडेंस है और वो नंबर 1 सेलिंग ब्रांड है, तो उसने जेलोसिल ले लिया। और लास्ट में उसने फिर डिसीजन मेकिंग ले ली। उसने डिसीजन ये ली कि आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आपने जो मुझे दिया, मेरे लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो जेलोसिल है और मैं जेलोसिल खरीदूंगा। आप समझ गए? तो इसको बोलते हैं कस्टमर्स बाइंग साइकिल, राइट? आप समझ रहे हैं? एक साइकिल होती है, आपको वो साइकिल को फॉलो करना होता है। आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करें, कहीं भी आप जाएं, मान लीजिए आप साड़ी बेच रहे हैं, तो आप साड़ी बेच रहे हैं तो वो मैडम आ जाएंगी, तो मैडम से पूछेंगे मैडम आपको किस लिए साड़ी चाहिए, कहीं आप पार्टी में जा रही हैं या घर के लिए चाहिए या आपको कोई बर्थडे अटेंड करना है या वेडिंग में जा रही हैं? तो बोल रही है नहीं मुझे घर के लिए चाहिए। तो जब घर के लिए मुझे साड़ी चाहिए तो उसका एक रेंज होता है, तो आप उसके लिए रेंज लेंगे, राइट? और उसमें आप ऑप्शन देंगे, 10 साड़ियां आप निकाल देंगे। नाउ हो सकता है वो मैडम को ब्लैक कलर पसंद आए, रेड पसंद आए, तो उसमें आप ऑप्शंस दे रहे हो और उसकी वजह से वो डिसीजन ले पाएगी और वो अपना साड़ी ले लेगी। इज दैट राइट पॉल सर? यस सर, यस सर, हाँ, ग्रेट ग्रेट। आपने तो आपकी वाइफ के साथ साड़ी खरीदने गए होंगे तो ऐसा ही होता होगा। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल राइट? सो इसलिए बिल्कुल मैंने सर। यही उदाहरण दिया कि आप लोग कनेक्ट कर जाएं कि क्या होता है। ये अच्छा स्लाइड लग रही है, लेकिन मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकल तरह से चीजें बताई
जो आप समझ सकते हैं। इज दैट क्लियर? बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा है सर, थैंक यू वेरी मच। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इस, यस सर, एप्रिसिएटिंग, थैंक यू। नाउ इसको बोलते हैं कस्टमर की साइकोलॉजी या कस्टमर बाइंग साइकिल। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट इज सेलिंग साइकिल। अभी आप सेलिंग हो, मतलब आप कस्टमर को बेच रहे हो, तो इसकी साइकोलॉजी क्या होती है? आपको पहले ग्रीटिंग करना है, हम इसको डिटेल में एक एक लेंगे। एक होता है ग्रीटिंग, मैं आपको समझाऊंगा ग्रीटिंग क्या होता है। दूसरा पॉइंट होता है क्वालिफाइंग कस्टमर, मैं उसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। तीसरा होता है हाउ डू यू प्रेजेंट अ प्रोडक्ट, प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट, दैट्स पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 इज ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस मतलब जो आदमी खरीद रहा है उसके दिमाग में 8-10 डाउट तो होंगे, अगर नहीं होते हैं तब भी वो पूछेगा, और आपकी वो ड्यूटी है, आपका वो प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए कि जो भी कस्टमर पूछे आप उसको कैसे क्वालिफाई करें, उसको कैसे आप उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करें। एंड बिकॉज अगर आपने कर दिया देन यू आर अ गुड सेल्स पर्सन एंड ही विल बाय द प्रोडक्ट। लास्ट इज क्लोजिंग द कॉल, very important friends, please remember this is the most important thing। आपने सब कर दिया, लेकिन अगर आपने कॉल को क्लोज नहीं किया तो मतलब आपने कुछ नहीं किया मेरे हिसाब से। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। आपने सब दिखा दिया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन अगर आपने कॉल को क्लोज नहीं किया, देयर इज अ टेक्निक ऑफ क्लोजिंग द कॉल, and if you have not done, you have not closed the call in the right perspective with lot of energy, then you are not a successful salesperson। आप समझ गए? तो हमने अभी क्या बात की, मैं फिर से एक बार रिविजिट कर रहा हूं। हमने पहले बात की बाइंग साइकिल की बात की, आपको क्लियरिटी दे दी क्या बाइंग साइकिल होती है, राइट। और जो दूसरी हमने बात की है वो सेलिंग साइकिल के बारे में बात की है। तो सेलिंग साइकिल में भी पांच इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं: ग्रीटिंग, क्वालिफाइंग कस्टमर, प्रेजेंटिंग प्रोडक्ट, ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस एंड क्लोज द कॉल। नाउ लेट मी टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रेंड्स, प्लीज लिसन एंड keep this in your mind till the time you are living। अगर कोई जॉब बहुत इनोवेटिव जॉब होती है जिसमें इनोवेशन चाहिए, मेरे हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है वो सेल्स जॉब होती है। बताएं क्यों? लेट मी टेल यू व्हाई। द रीजन इज आप 50 कस्टमर या 100 कस्टमर को रोज मिल रहे हो, हर कस्टमर का मूड अलग है। हो सकता है कस्टमर ने अपनी वाइफ से डांट खाकर आया हो और परचेस कर रहा है। ये भी हो सकता है कस्टमर के बॉस ने उसकी मतलब लेफ्ट राइट ली हो तो उसका मूड डिफरेंट हो सकता है कस्टमर बहुत खुश होगा क्योंकि उसकी स्टॉक मार्केट में अच्छे आज शेयर्स बिक गए, राइट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि you are dealing with different set of customers, right? तो अगर आप एज अ सेल्स पर्सन इनोवेटिव नहीं है, अगर आप इनोवेशन मतलब अपना दिमाग नहीं चला रहे हैं, तो आप यू कैनॉट बी अ गुड सेल्स पर्सन। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि सेल्स पीपल आर एक्सट्रीमली इनोवेटिव, बहुत इनोवेशन होता है। मैंने बेस्ट ऑफ द सेल्स पर्सन मेरी 23 इयर्स में देखा है। हाउ दे टॉक टू डॉक्टर अगर गुस्सा है उसे कैसे शांत करते हैं, फिर दे कम टू द टॉपिक। नेवर आर्ग्यू विद द कस्टमर, एज दे से कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज किंग बिकॉज वो आपका प्रोडक्ट खरीदता है। तो आप में वो स्किल्स और टेक्निक्स होनी चाहिए कि हाउ यू कैन डील विद योर कस्टमर। इज दैट क्लियर? गुड,
Very Wow, good. sir. Yes, I like it. Yeah, thank you. I'm not going fast. I'm not going slow. No, correct speed and Fantastic. good information. Fantastic. Very useful information. Very useful. I'm telling you, अगर आप selling is a very thrilling job. मतलब जिंदगी का अगर आपको मजा लेना है और पैसा कमाना है तो selling is a very good profession. Let me tell you. लेकिन आपको selling का एक पैशन होना चाहिए. आपको मतलब समझना चाहिए कस्टमर को. और अगर एक दिन आपके लिए 1 या 2 दिन आपके लिए खराब हो गया, डोंट बी डीमोटिवेटेड. आपके अगर महीने में 10 दिन अच्छे हो गए, आप टारगेट कर लोगे. तो दैट इज द वे अ सेल्स पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड एंड अप्रोच अ सेल्स जॉब. इज दैट क्लियर? या नाउ अब ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है. अब आपको क्या करना है, ये जो बाइंग साइकिल हमने दिखाई थी, राइट, और जो सेलिंग साइकिल है, इन दोनों को आपको मैप करना है. क्या मैप करना है? नीड एनालिसिस है तो हम उसके लिए क्वालिफाइंग कस्टमर, उनको जोड़ना है, उनकी मैपिंग करना है. अगर इवैल्यूएट ऑप्शंस करना है, अगर कस्टमर को ऑप्शन देना है तो उसको आप 8-10 प्रोडक्ट प्रमोट करोगे, राइट. अगर उसमें मान लीजिए कस्टमर में बहुत डाउट है, यार मैं क्यों खरीदूं ये मेडिसिन, मैं ये क्यों शर्ट खरीदूं, क्यों मैं ये साड़ी, तो उसके आपके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है. उसके जो भी डाउट्स हैं आपको क्लैरिफाई करना है, उसके हर डाउट को आपको क्लैरिफाई करना है. और अगर डिसीजन मेकिंग, यार आप सोचिए, कभी कभी मैं मान लीजिए एसी खरीदने जा रहा हूं, उस वक्त ही मुझे डिसीजन लेना है, तो वो सेल्स पर्सन की ब्यूटी होती है कि वो कैसे कॉल को क्लोज करे. सर आई एम टेलिंग यू, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये जो सैमसंग का एसी है सर, दिस इज 1.5 टन. विद इन 2 मिनट्स इट विल कूल योर रूम. आजकल इतनी गर्मी है सर, लातूर में ऑलरेडी 45 डिग्रीज टेम्परेचर हो गया है सर. और इसकी ब्यूटी ये है कि आप जैसे घर के अंदर घुसेंगे 2 मिनट में यह आपका रूम ठंडा कर देगा. सर दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो जो पॉइंट है सर, इसकी जो लोग सोचते हैं कि एसी लगाया तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ता है. नहीं सर, इस मॉडल सैमसंग A325 में सर सबसे अच्छा बात है कि आपकी साल में बस 300 यूनिट जाएंगी सर. तो आपको जो बिजली का प्रॉब्लम है इस एसी में नहीं आएगा, राइट सर. तो क्या मैं या आपके लिए पैक करवा दूं? ये क्लोज द कॉल हो गया. क्या मैं आपके लिए ये एसी 1.5 टन 3 जो है इसको पैक करा दूं? राइट सर, ओके. Yes, sir. तो Yes, sir. राइट, तो आप Yes. कस्टमर के लिए डिसीजन हेल्प ले रहे हो, आप कस्टमर को हेल्प कर रहे हो डिसीजन लेने का. नहीं तो कुछ कंफ्यूज कस्टमर है ना, उनको जब वो आते हैं उनको कुछ पता ही नहीं रहता है, यार क्या लूं. तो आपको वो रिकग्नाइज करना है, क्या ये कस्टमर उसमें क्लैरिटी है. जैसे मैं कभी जाता हूं, बाटा जाता हूं, मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं, मैं उसको डायरेक्ट बोलता हूं मुझे आप ये जूते दिखाओ, ये साइज दिखाओ, ये करो, तो वो अपना काम कर देगा, क्योंकि वो सोचता है ये कस्टमर बहुत क्लियर है. बट वो 30% लोग ही क्लियर होते हैं. 70% लोग, उनको कुछ खरीदना है, चलो घुस गए. अब ब्रांड कॉन्शियस, उनके मतलब दिमाग में ब्रांड नहीं होता है, मुझे सैमसंग लेना है, एलजी एसी लेना है या कैरियर लेना है. तो आप आइडेंटिफाई करो कि ये आदमी बहुत कंफ्यूज्ड है, मैं इसको हेल्प करूंगा. और आप कैसे हेल्प करूंगा, मैंने आपको उसका उदाहरण दिया है. That is the beauty of closing the call. And as a sales champion, you should have the ability and capability to close the call. And if you are able to close the call,
you become a sales champion. और सबसे Good. बड़ा, लेट मी टेल यू द बेनिफिट, इसका फायदा क्या है? अगर आपने अपना टारगेट कर दिया, आपको हर मंथ आपकी सैलरी छोड़कर आपको अच्छे इंसेंटिव मिलते हैं। और इंसेंटिव्स आपकी, मान लीजिए कल सपना है कि मुझे एक मोटरसाइकिल खरीदना है, आपको एक कार खरीदना है, राइट? तो आपको जो एक्स्ट्रा मनी मिलता है, एडिशनल मनी मिलता है, आप उससे अपनी ये जो सपने हैं वो सपने आप यू कैन रियलाइज थ्रू दिस इंसेंटिव. सो दैट इज द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग अ सेल्स पर्सन, राइट? लोग समझते नहीं है कि सेल्स इज अ वेरी लुक्रेटिव, बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन डिफिकल्ट तो है। हर चीज लाइफ में आसान थोड़ी होती है। अगर आपने प्लानिंग की है, अगर आप में पैशन है, सो यू शुड जॉइन सेल्स. इज दैट क्लियर, भगवत सर? Yes, sir. Yes, sir. Fantastic. Beautiful, excellent. ओके, थैंक यू. नाउ कमिंग टू, अब हम क्या करेंगे, सेलिंग साइकिल में हर कंपोनेंट के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि मैंने आपको बताया, सेलिंग साइकिल में 5 स्टेप्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आप सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो है ग्रीटिंग. ग्रीटिंग मतलब क्या होता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रीटिंग्स. ग्रीटिंग मतलब आपका कस्टमर जब आपकी दुकान में आए, या आप किसी कस्टमर के घर या डॉक्टर के पास जाएं, तो आप ओपनिंग द कॉल करोगे. उसको हम बोलते हैं ओपनिंग द कॉल. कैसे करेंगे? गुड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग है तो बोलेंगे मॉर्निंग सर, आई एम रतीश दीक्षित, मैं रतीश दीक्षित इस कंपनी से हूं, और मैं आपको कुछ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, राइट? तो इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है, जो कस्टमर है वो सोचता है यार ये आदमी बड़ा ठीक लग रहा है मुझे. एक तो अच्छा गुड मॉर्निंग भी बोलता है, गुड आफ्टरनून भी बोलता है, अपना इंट्रोड्यूस करता है, अपना नाम भी बताता है, और आप वो 2 मिनट में आप कस्टमर को कंफर्टेबल कर रहे हो. अगर याद रखना दोस्तों, अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, कस्टमर को एंग्शियस मत करो, स्ट्रेस मत करो, मेक हिम कंफर्टेबल. कोई भी अपने टीचर की मैं एग्जांपल देता हूं, आप टीचर से कोई चीज उनसे आप हेल्प लेना चाहते हो, मेक देम कंफर्टेबल. सर हाउ आर यू टुडे, यू आर लुकिंग नाइस सर, यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल, आपकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही है सर. यू नो, हम लोग क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, राइट? सर दिस इज नॉट डन सर, नो दिस इज नहीं सर, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा. नो, दैट्स नॉट द वे. आपको हर आदमी से एक लहजे में, एक प्यार से, एक अच्छे स्माइलिंग फेस से बात करना है. आपको पता है कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, सेरोटोनिन और इंपॉर्टेंट केमिकल्स विच मेक यू फील हैप्पी, राइट? तो आप कस्टमर्स को कंफर्टेबल करें, और जब कस्टमर कंफर्टेबल हो जाए तो कस्टमर 3 चीजें खरीदता है, याद रखना. नंबर 1, he buys first is solution. Are you providing him the solution? मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरी आंख में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, आप मुझे उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं कि नहीं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा चीज जो खरीदता है वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका ट्रस्ट खरीदता है. अगर आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप खुद ट्रस्ट नहीं, आप उसके क्वेश्चंस और आंसर्स नहीं दे पा रहे हो, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा. अच्छा प्रोडक्ट हो, बेकार प्रोडक्ट हो, वो सेकेंडरी है. आप उसे कैसे ट्रीट करते हो, तो ही बाइज यू. एंड द थर्ड थिंग इज, वो सिक्योरिटी बाय करता है.
सिक्योरिटी बाय करता है, मतलब वो कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट बाय कर लिया तो मैं क्या सिक्योर हूं, अगर मैंने ये दवा ले ली तो मुझे कुछ चैलेंज तो नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी तो ठीक है। तो दोस्तों मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्लीज लिसन टू मी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कस्टमर सॉल्यूशंस खरीदता है, he doesn't buy a product, always remember। मतलब जब तक आपकी जान है आप ये चीज भूलिएगा मत, वो सॉल्यूशन आपसे खरीदता है, he buys your trust and the third thing what he buys is the security। आप सिक्योर, ट्रस्ट, ये सिक्योर प्रोडक्ट है, एफडीए अप्रूव्ड है, यूएस अप्रूव्ड है, जीएमपी अप्रूव्ड है, यू नो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हुआ greetings, how do you greet a customer, right? Now to give you an example, how do you greet? गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग करोगे, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून, मैडम है तो मैडम बोलोगे, सर है तो सर बोलोगे, गर्ल तो राइट, even if he's a boy you need to tell sir, you need to say madam। I am मैं रतीश श्याम दीक्षित, I am coming from AstraZeneca, or I am coming from Biocon, I am coming from Sun Pharma। आज का पर्पस आपसे मिलने के लिए ये है कि I will provide a solution on the benefits of the products। Very important। There are two things which you should remember, friends. One is the features and the other is benefit, right? Features don't sell a product. What sells the product is a benefit। Please remember। एग्जाम्पल मैं देता हूं, अगर आप टीवी में आपके पास एक फीचर है ब्लूटूथ का, आपके पास फीचर है बट उसका फायदा क्या है, उसका बेनिफिट क्या है कि आप कान में लगाकर आराम से सुन लो, जो आपके जो फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, वो डिस्टर्ब नहीं होगी। तो द पॉइंट इज benefit sells the product। Features are important but they don't sell a product। What sells a product is a benefit, right? Now for example, अगर आपकी जो दवाई है वो छोटी गोलियां हैं, छोटे टैबलेट्स हैं, उसका साइज कम है, तो उसका फायदा क्या है? दैट इज अ फीचर कि द साइज इज स्मॉल, बट द फीचर इज वो आदमी सॉलो करने में उसे प्रॉब्लम नहीं होती है। इट इज मेंट फॉर द एल्डरली पेशेंट्स, जो एल्डरली पेशेंट्स को प्रॉब्लम आती है बड़ी कैप्सूल या टैबलेट खाने में, तो अगर आपकी साइज छोटी है तो वो आराम से खा सकता है, राइट? सो ऑलवेज डू रिमेंबर that features don't sell a product, what sells the product is the benefit। Yes sir, Paul sir। Yes sir, good, correct, right? correct sir। yes। तो बढ़िया, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो लोग सोचते हैं कि फीचर्स बिकता है ना, फीचर्स डोंट सेल अ प्रोडक्ट। कार में आपके लोगों के 10-10 फीचर्स होते हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं होता है कि क्या क्या फीचर्स हैं। लेकिन अगर आप समझ गए कि आप रेडियो एक बटन से चैनल्स चेंज कर देते हैं अपने स्टीयरिंग में, जो आपका बटन होता है, राइट? तो उसका बेनिफिट ये है कि आपको ड्राइविंग के वक्त अपना बस उंगली या थंब घुमाना है। दैट्स द बेनिफिट टू द कस्टमर और अ कंज्यूमर, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट ग्रीटिंग्स। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, जो साइकिल में अगर आप देखेंगे द सेकंड पॉइंट था क्वालिफाइंग कस्टमर। नाउ कमिंग टू क्वालिफाइंग कस्टमर नीड्स। इंसान की दो तरह की नीड्स होती हैं, और भी नीड्स होती हैं, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स होती हैं उनको बोलते हैं स्टेटेड नीड्स। मतलब मैं डायरेक्टली आपको आकर बोल दूंगा, भाई मुझे आप आंख में दर्द हो रहा है, मुझे आप वैसिकॉन आई ड्रॉप्स दे दो, उसको बोलते हैं स्टेटेड नीड्स। या डॉक्टर बोलेगा भाई आप आ गए हो, सुनिए मैं नेक्स्ट मंथ कॉन्फ्रेंस जा रहा हूं भाई,
एक कॉन्फ्रेंस है, आप अपनी कंपनी को बोलिए कि मेरे लिए अरेंज कर दीजिए, मेरा आप एयर टिकट करा दीजिए, मैं आपके लिए और लिखना शुरू कर दूंगा, राइट? दोज आर नोन एज स्टेटेड नीड्स। अनस्टेटेड नीड्स क्या बोलते हैं? व्हाट दे मीन टू से, मतलब वो क्लियर नहीं है, थोड़ा अनक्लियर है। यू नो, आपको एज अ पर्सन और अ सेल्स पर्सन आपको समझना है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, राइट? आप कुछ कस्टमर्स बोलते हैं यार मुझे ऐसा जूता दो, मतलब जब मैं दौड़ता ज्यादा हूं तो मेरे मतलब कुछ फीट में कंफर्ट आए। तो आपको समझना चाहिए ये आदमी ऐसा आदमी है जो दौड़ता बहुत है, मतलब ही गोज फॉर अ वॉक और ही गोज फॉर अ रन, तो उसके लिए कुछ उसके जूते में कुशनिंग इफेक्ट होना चाहिए। वो क्लियरली बताएगा नहीं कि वो कुशनिंग इफेक्ट होना चाहिए, राइट? आपको एज अ सेल्स पर्सन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस जूते में वन ऑफ द फीचर्स शुड बी कि उसमें कुशनिंग होगा। तो उसका बेनिफिट क्या होगा? वो जब दौड़ेगा 8-10 किलोमीटर तो उसके पैर में या उसके जो हील में उसको दर्द नहीं होगा। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन अनस्टेटेड नीड, व्हाट दे मीन टू से। आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? You need to ask some background questions to know. कोई बैकग्राउंड क्वेश्चंस पूछिए, सर आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए? ओके, आपको ये दर्द होता है, सर में दर्द सुबह होता है कि शाम को होता है कि रात में होता है? और आप जब जॉब कर रहे हैं तो उसमें आप कितनी देर खड़े रहते हैं सर? अच्छा, आपकी जॉब खड़े रहने वाले की है, दैट मीन्स आप 4-5 घंटे खड़े रहते हैं, तो आपको ऐसा शूज चाहिए जो आपको कंफर्ट दे। तो दैट इज द वे यू नीड टू आस्क अ क्वालिफाइंग नीड एंड आस्क क्वेश्चन। और जैसे ही आप क्वेश्चन समझ जाएंगे, आप उसको प्रोडक्ट मत बेचिए, आप उसको सोल्यूशन बेचिए। यू नीड टू सेल अ सोल्यूशन, right? Now coming to the point, the third point which we were talking on, the part is the presenting product, right? Presenting product, इसमें आपको मैं अब बताऊंगा प्रेजेंटिंग प्रोडक्ट का कैसे प्रेजेंट करते हैं। आप अगर मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बेनिफिट विद द बेनिफिट एंड जैसे मैंने बताया आपको अपना प्रोडक्ट एज अ सॉल्यूशन प्रोडक्ट प्रेजेंट करना चाहिए रादर देन अ प्रोडक्ट। और आपको डॉक्टर की कुछ मैंने रेप्स को देखा है, वो दरवाजे के पास रहते हैं। आप सोचिए वो अगर 50 इयर्स का होगा तो वो कैसे आपका प्रोडक्ट या विजुअल एड देख लेगा? आपको डॉक्टर के पास थोड़ा होना चाहिए और उसको आप समझाइए कि सर ये एक प्रोडक्ट है और आप अगर ये प्रोडक्ट यूज करेंगे अपने पेशेंट के लिए तो उसका फायदा क्या होगा और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। तो इसके लिए मेरे लिए डोजिंग है, इसकी डोजिंग है 40 mg प्लस 2.5 mg। तो जब आप अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं उसको जाकर रामायण मत बताइए, महाभारत मत बताइए, उसके पास उतना टाइम नहीं है। डॉक्टर आपको बस 30 सेकेंड या 2 मिनट देता है, उस 1 मिनट में आप क्या रेलेवेंट चीज बता सकते हैं जो डॉक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको बोलते हैं हम की मैसेजेस। आप उस विजुअल एड के थ्रू ऐसी चीज बताइए जो उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर टू प्रेजेंट अ प्रोडक्ट। इसका एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी कोई केमिस्ट शॉप है, अभी वो बंदा आया और उसको आपने कोई प्रोडक्ट दिखाया, तो आपको उसको बोलना चाहिए सर इसका ये
पीछे सब इसके डिटेल लिखे हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो इस डिटेल में मैं आपको बता देता हूं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसके क्या हैं। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए, टू गिव यू कॉन्फिडेंस, मैं आपको एक बार इसके जो इंसर्ट में लिखा है आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, और आप एक बार, आपको जब आपको विश्वास हो जाए तो आप प्रोडक्ट खरीद लीजिए। तो you are helping the patient to understand the product in a better way, और जब वो समझ जाएगा तो वो ट्रस्ट ले लेगा, और जब वो ट्रस्ट उसको हो जाएगा तो वो आपका प्रोडक्ट खरीद लेगा। So that is the way of presenting a product. Yes sir, Paul sir, Pooja. Yes, sir. Correct, correct. Yes, sir, very nice. Yeah, any doubts? No doubt, everything is No, clear. sir. Fantastic, fantastic, excellent. Okay, now once we have done the presentation कि उसके लिए आपको क्या चाहिए। देखिए वो बोलते हैं ना, अगर आपको एक पेड़ काटना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले अपना जो एक्स है जिससे आप काटने वाले हो उसको शार्पन करोगे, क्योंकि अगर आपका एक्स शार्पन हो गया तो आपका पेड़ 2 घंटे में कटेगा। लेकिन अगर आपका एक्स ही नहीं शार्पन है तो आप पूरी रात या दिन काटो तब भी नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपको जब आप अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करना जरूरी है। यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड, और उसके लिए क्या करना है? प्रोडक्ट नॉलेज आनी चाहिए आपको, अच्छी प्रोडक्ट नॉलेज आनी चाहिए। हर चीज नहीं आनी चाहिए, आपको क्या आना चाहिए? उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उसके एडवर्स इवेंट्स क्या होते हैं, उसके डोसेज क्या है, उसका स्टोरेज कंडीशंस क्या है। तो ये सब आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, इसलिए आपको रिविजिट करना होता है। दूसरा, देखिए मैं आपको एक राज की बात बताऊं, कभी कभी लोग आपकी कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपको ट्रस्ट करते हैं। बोलते हैं यार ये आदमी कॉन्फिडेंट है, तो क्योंकि कॉन्फिडेंट है तो सही बोल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप गलत बोलिए, लेकिन अगर आप कस्टमर के सामने या कंज्यूमर के सामने कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो आपका प्रोडक्ट कैसे लेगा? वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला? आपको मैंने एक स्लाइड में क्या बोला था? ही बाइज यू। आपका कॉन्फिडेंस देख रहा है, और अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो वो समझेगा प्रोडक्ट बेकार है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप सही सोल्यूशन दे रहे हो, तो इसका मतलब ये है प्रोडक्ट भी बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं खरीद रहा हूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? जब आपके पास सही स्किल्स होंगे, जब आपके पास सही प्रोडक्ट नॉलेज होगी, तब आपको सही कॉन्फिडेंस आएगा। इज दैट क्लियर, पॉल Yes, सर? sir. Yes, Yes, sir. sir. एनी डाउट्स पूजा? No, sir, no. No sir. doubt. फैंटास्टिक, ग्रेट, राइट। नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं लोग, बोलते हैं आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। मेरा कहना ऐसा नहीं है सर। Okay. मेरा कहना है आप राइट प्रैक्टिस करो तभी आपको राइट रिजल्ट आएंगे। अगर आप रॉन्ग Correct. प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो रिजल्ट तो वही आएंगे। सही है Correct. नहीं है? सही है कि नहीं सर? Yes, sir. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज राइट प्रैक्टिस। राइट प्रैक्टिस makes provides you good results. But if you don't practice in the right way, you will not achieve what you desire, what is your goal. So please, whatever you do, अगर आप लैब में काम कर रहे हो या आप पढ़ रहे हो, तो आप देखो कि सही तरह आप लैब में सही उसका कंसंट्रेशन डाल रहे हो। आपने जाकर उसको स्केल से अगर
अगर 300 मिलीग्राम्स है तो आपने 300 मिलीग्राम्स ही उसे वे किया है, राइट? ये नहीं कि आपने उसको 600 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम वे किया, आपको रिजल्ट आएंगे ही नहीं, एंड पॉइंट आएंगे ही नहीं। एंड पॉइंट नहीं आएगा तो आपका प्रैक्टिकल अच्छा नहीं जाएगा, और प्रैक्टिकल अच्छा नहीं जाएगा तो आपको मार्क्स आपकी कैसे प्रोफेसर देंगे? फिर आप ब्लेम कर दोगे, यार यार मेरा प्रोफेसर अच्छा नहीं है, उसने मार्क्स नहीं दिए। गलती तो आपकी है ना, राइट सर? यस सर। हाँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, दैट्स द एग्जांपल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चौथा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। देखिए, आपके पास कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर आया या पेशेंट आया, आपसे ऑब्जेक्शन पूछे तो आप इरिटेट मत होइए, गुस्सा मत आइए। वो क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। आप ये देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन ले रहा है, फॉर एग्जांपल, राइट, 1 मिनट, अगर 1 मिनट, 1 मिनट सर, ये जो पॉइंट दिखा रहा है सर, अगर वो आपके में है तो इट विल लीड टू सेल, अगर कोई ओवर ऑब्जेक्शन ले रहा है। लेकिन अगर आपने उसका ऑब्जेक्शन को सही तरह आंसर नहीं दिया या गलत आंसर दिया, तो आपका सेल नहीं होगा। आपका प्रोडक्ट, आप उसे अगर सही तरह सॉल्यूशन नहीं दे पाए, if you are not able to provide a right solution to the person or to the customer or to the consumer, then it will not, the sale will not happen. लेकिन आप प्लीज सुनिए, आपसे कोई कस्टमर या पेशेंट या कंज्यूमर आकर कुछ पूछता है प्रोडक्ट के बारे में या सर्विसेज के बारे में, अगर आपको पता नहीं है तो उसको आप झूठ मत बोलिए प्लीज, कुछ भी ठोक दीजिए, ऐसा मत कीजिए, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको बोलना है, सर ऐसा कीजिए, मैं इस बारे में श्योर नहीं हूं, आपका फोन नंबर दे दीजिए मुझे, मैं आपको आधे घंटे में कॉल कर इसका पूरा आंसर दे दूंगा। तो इससे आप क्या कर रहे हैं? आप कस्टमर का ट्रस्ट गेन कर रहे हैं। यार ये आदमी जेन्युइन आदमी लग रहा है यार मुझे, इसने, और आधे घंटे बाद आप फोन जरूर कीजिएगा। अगर आप फोन नहीं करेंगे तो कस्टमर गया, customer will not come back to you. You have to go to the customer, or you have to go to the patient, you have to go to the consumer. Are you getting me? So Yes, very important is, अगर आप किसी चीज के बारे में अनश्योर हैं और आपको आइडिया नहीं है, तो आप बड़े ओपन तरह से बोलिए, सर मुझे इसके बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको आधे घंटे में फोन कर बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। कस्टमर खुश हो जाएगा। और आधे घंटे में अगर आपने फोन कर बता दिया, तो कल आप बोलेगा, कस्टमर बोलेगा, सर मैं आपकी दुकान में कल आ रहा हूं, आप ही से प्रोडक्ट लूंगा। क्यों लिया? क्योंकि ही हैज बॉट यू, ही हैज ट्रस्ट ऑन यू, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया है। दैट इज the importance of overcoming objection. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर कोई कस्टमर पूछता है तो बोलते हैं यार ये इरिटेट हो जाते हैं, और जैसे वो इरिटेट हो गया, यू हैव लॉस्ट द कस्टमर। सो डोंट लूज द कस्टमर, अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम एंड गिव हिम अ राइट आंसर। राइट? हैंडलिंग ऑब्जेक्शन बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है ये, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। यू नो, एक होता है ओवरकमिंग ऑब्जेक्शन और एक होता है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। उसके लिए भी एक टेक्निक होती है, यू नो। उसकी टेक्निक क्या होती है? अगर कस्टमर कुछ बोल रहा है, यस यस सर, ओके सर, ओ यस सर, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, मैं समझ रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं, ओके, अच्छा, ओके, ठीक है, राइट? इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ask open-ended question. Now, what do you mean by open-ended question? There are two types of questions.
One is known as close-ended question. The other one is known as open-ended questions. Close-ended question इसे बोलते हैं. Are you coming to a movie? He says yes or no or maybe. Those are known as close-ended question. What is your name? My name is Ratish Dixit. That is a close-ended question. Open-ended question होते हैं जहां पर आपको ज्यादा नॉलेज मिलती है आदमी से, राइट? आपको नॉलेज चाहिए. सो फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस प्रोडक्ट? Okay, I bought this product from this shop, and how was the product? How has been your experience of this product? Oh, it is good. I bought this product from last 5 years, and this product is good. It gives me great. So जब आपको आदमी के बारे में और जानना है, उसकी बारे में और जानना है, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, राइट? तो try to ask more open-ended questions. Okay, sir. So you need this product for home, or you need it for your patient, or do you need it for your dispensary, or for what you need this question for this product? तो आपको answer मिलेगा, right? So there are two types of question. One is the open-ended question and the other is close-ended questions. दोनों का significance है, but जब आपको knowledge किसी के बारे में ज्यादा चाहिए होती है, then you need to ask open-ended questions. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Any doubts? No, no doubt. Absolutely. Great. Okay. Now, coming to my favorite point, closing the sale. बहुत ही important, बहुत ही मतलब अगर आपने ग्रीटिंग्स कर ली, आपने क्वालिफाई कर लिया कस्टमर को, आपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, लेकिन अगर आपने क्लोजिंग नहीं की सेल की, सेल इज नॉट कंप्लीट अनलेस इट इज क्लोज. याद रखना. गुड नाइट मतलब लास्ट है, गुड नाइट. अगर आप मान लीजिए आप मतलब अपने फ्रेंड को बाय नहीं बोलते हैं, ऐसे ही चले आते हैं, तो फ्रेंड बोलता है क्या आदमी है यार, मुझे बाय भी नहीं बोला, गुड नाइट भी बोला. दैट्स अ प्रोटोकॉल, राइट? इन अ सिमिलर वे आपको क्लोजिंग द सेल की टेक्निक होती है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है वो करना चाहिए. और उसको कैसे करते हैं? क्लोजिंग अ सेल, व्हेन एंड हाउ. व्हेन एंड हाउ बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ मैं आपका इसका एक उदाहरण और एक एग्जांपल देता हूं. मैंने एक डॉक्टर सतीश हैं, वो एक फिजिशियन है, उसको मैंने अपना प्रोडक्ट के बारे में बात किया, राइट? उसको प्रेजेंट किया. सर दिस प्रोडक्ट कम्स विद द बेनिफिट ऑफ once daily. Your patient has to take only once a day tablet, so there is a convenience, and the cost of this product is 5 rupees per tablet. Now I close the call. Sir, so can I make this product available in the chemist shop? I am closing the call. Sir, can you please prescribe this product? This product is available in Asha chemist shop. Okay, he'll say okay. Sir, can you pass the benefit of this product to next 3 patients? क्या आप मेरा प्रोडक्ट जो जिसके बारे में मैंने बात की, आप ये आपके जो नेक्स्ट 3 पेशेंट्स आएंगे इस वीक में, क्या आप उनको प्रिस्क्राइब करेंगे? राइट, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग द कॉल. Right? You are telling him where to write, when to write, and how to write. And that's the difference between a good salesperson and a champion salesperson. वो डॉक्टरों को बोलेगा, सर मेरा प्रोडक्ट आशा केमिस्ट में अवेलेबल है,
इसकी कॉस्ट ये है, कैन यू प्लीज प्रिस्क्राइब, राइट की जगह प्रिस्क्राइब दिस प्रोडक्ट टू some of your patients who are having a problem of hypertension and CAD. That is the way closing a call takes place. Pooja, have you understood what you mean closing the call? Yes, sir. Any doubt? Yes, sir. Yes, sir. Yes. No, sir. No, sir. No doubt. Okay, so it is extremely important. Believe me, friends. I mean, जितना आपका शार्प क्लोजिंग होगा उतने आपके चांसेस हैं कि आपका सेल बढ़ेगा, आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, आप सॉल्यूशंस दे पाओगे और आपको अच्छा इंसेंटिव मिलेगा. क्लोजिंग मैंने बहुत से मेरे 20 साल में या 23 साल के करियर में देखा है, कुछ सेल्स पर्सन इतना एग्रेसिव क्लोज करते हैं कि डॉक्टर ना चाहते हुए भी लिखता है, क्योंकि द क्लोजिंग इज सो शार्प, द क्लोजिंग इज सो असर्टिव, द क्लोजिंग इज सो एग्रेसिव, राइट. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्लोजिंग द सेल, क्लोजिंग द कॉल, बिना, लोग सोचते हैं कि मैं क्यों क्लोज करूं, मेरा हक नहीं है डॉक्टर से मांगने या कस्टमर या कंज्यूमर से मांगने. नहीं, मैंने एक कंज्यूमर आया, उसको वॉशिंग मशीन दिखाई, सर ये वॉशिंग मशीन IFB की है, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड. इस वॉशिंग मशीन में ये बेनिफिट हैं, आपको अगर आपके कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, इसमें एक फीचर है कि आप इसको 10 मिनट चला दें, आपके जितने भी कपड़े गंदे हैं वो 10 मिनट गर्म पानी कर वो खत्म कर देगा. इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत कम आता है और इसकी प्राइस भी 38,000 रुपीज है. एंड अबव दैट सर, आपका आज लास्ट मंथ से EMI ऑप्शन भी शुरू हुआ है. आपके पास तो HDFC कार्ड होगा या कोई भी क्रेडिट कार्ड होगा, तो आपको अगर 38,000 है, 12 महीने का EMI मिलेगा. 38,000 अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको 3,000 में पर मंथ वॉशिंग मशीन मिल रही है सर. Correct. Right? That is what is called a closing, and that is what I call a person as a sales champion. और जब उसने उस साल, उस महीने, उस बंदे ने अगर 5 या 6 वॉशिंग मशीन बेच दी, उसका टारगेट हो गया. और जो नेक्स्ट बेचेगा उसका टारगेट का उसको इंसेंटिव मिलेगा, और वो जो इंसेंटिव मिलेगा उस इंसेंटिव से वो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी मदर को, अपने फादर के लिए कुछ चीज खरीद देगा. कुछ खरीद कर जब घर जाएगा या गर्लफ्रेंड को कुछ देगा तो गर्लफ्रेंड बोलेगी, वाओ व्हाट अ गाय, नाउ आई वांट टू गेट मैरिड टू यू. राइट? बिकॉज you are doing well in your life, and every girl, every boy wants a person who is successful. तो आप समझ रहे हैं ना? Sales is a beautiful profession. अगर आप इसको पैशन से करें, दिल से करें, प्लानिंग से करें, और निराश मत हो. Don't get demotivated, friends. लाइफ आप देखिए, इस कोविड के वक्त लोगों ने क्या क्या झेला है, लेकिन कुछ लोग तब भी मोटिवेटेड हैं. ये है जिंदगी. सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड, यू नीड टू बी मोटिवेटेड. आप लोग प्रॉब्लम्स में ज्यादा अपना टाइम मत डालिए. हाउ एज अ मैच्योर्ड गाय यू कैन फाइंड अ सॉल्यूशन. प्रॉब्लम तो सभी बोल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं तो ये 1000 चीज प्रॉब्लम आ सकती है. अब अपने प्रोफेसर से बोल सकते हैं ये प्रॉब्लम है, बट as a good student, are you finding a solution for that? And that is most important. Clear? So closing the sale, इसलिए मैंने इसमें टाइम लिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है. और अगर आप ये आर्ट को समझ गए तो you will be a great sales champion. Closing the sale में buying signals होते हैं. As you notice a strong buying signal, आपका डॉक्टर आपसे क्या करेगा, अच्छा बताओ आपने मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसकी प्राइसिंग कितनी थी यार, इसकी प्राइस क्या है. जब भी कोई कस्टमर प्राइस के बारे में बात करे तो आपका सबसे पहले सिग्नल होता है कि ये बंदा इंटरेस्टेड है मेरे प्रोडक्ट में. राइट?
तो आप उसको इमीडिएट अपना निकाल कर बताइए, सर इसकी प्राइसिंग तो 5 रुपए है पर टैबलेट, ओके राइट। तो आप कस्टमर या कंज्यूमर से सिग्नल समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या चाहता है आपसे और क्या बोल रहा है, राइट। एंड देन जैसे ही आपने बता दिया उसको प्राइस, ओके सर, सो इफ द प्राइस इज डन, कैन आई टेल माय पर्सन टू पैक द प्रोडक्ट फॉर यू, कैन आई टेल हिम टू पैक द वॉशिंग मशीन फॉर यू। इमीडिएटली आपको बोलना है, आपको उसे हेल्प करना है, राइट। सो आस्क फॉर सेल, and once you have asked for sale, you will get the sales, and if you don't ask for sales, then you will not get the sales. कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि वो कुछ ज्यादा बोलते नहीं है, आप उनकी आंखों में देखिए, आप उनसे समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, राइट। दोज आर डिफिकल्ट कस्टमर्स। सो कुछ आसान कस्टमर्स होते हैं, कुछ डिफिकल्ट कस्टमर्स होते हैं। Now, what are the important key takeaways from this presentation or selling skills? As a sales resource, understand लोगों की, बोलते हैं ना, नीड को आइडेंटिफाई करो through buying and selling cycle. Try to understand what is the need. Second point, art of selling is, एक आदमी में आर्ट होती है। अगर कस्टमर बात नहीं कर रहा है तो आप कैसे उसे बात करने की कोशिश, वो बात करे, क्योंकि जब वो बात करेगा तो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा। सो दैट इज द आर्ट ऑफ सेलिंग। जैसे मैंने आप लोगों को बताया और समझाया, फीचर्स आर इंपॉर्टेंट बट व्हाट हेल्प्स द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड आर द कोर बेनिफिट्स। बेनिफिट्स पर बात करो। Features are important, but what sells the product is the benefit. And the last but most important point is closing the call. Call को कैसे close करते हो? And demanding, याद रखना आपका काम ही है बिजनेस लाना, तो शर्माए आप, कस्टमर या कंज्यूमर से शर्माइए मत। Demanding for business is the knack of a sales champion. How do you close the call? How do you demand for business? How do you get things in the right perspective? That is the power of sales champion. With this, I finish my topic on power of the selling. power of selling skills. Right, sir? Yes, sir. Yes, sir. Now I will appreciate questions. मुझे क्वेश्चन चाहिए आज, आप लोग पूछिए। No question is wrong. Don't worry. I want you guys to speak. सर, जो आज प्रेजेंटेशन आपने दिया है, ये टोटल 23 इयर्स एक्सपीरियंस का जो स्किल है, वो पूरा का पूरा हमारे स्टूडेंट को आपने शेयर किया है। मेरी कोशिश, you are really a champion salesman. Correct, sir. I congratulate you. Correct, sir. Even I am teaching this subject from last 25 years. So today I learned so many very beautiful things. Correct, regarding the sale. ये मेरी कोशिश यही थी सर। Features and the benefits. So many things are there. Yes. If a बंदा कोई अगर ये लेक्चर दिल से सुना है तो वो डेफिनेटली सेल्स में जाना चाहेगा। करेक्ट, और वो भी अपने जैसा बन सकता है। 100%। हर आदमी में अगर लगन है और उसको जिंदगी में कुछ करने की लगन है और वो ये सब चीजें समझ गया, तो सेल्स आदमी इतना पैसा अर्न करता है, इतना सर, कि मैं क्या बताऊं उसका। मैं आपको बता रहा हूं, 2004 में जब मैं रिप्रेजेंटेटिव था, व्हेन आई जॉइंड, तब मैंने 3.5 लाख इंसेंटिव अर्न किया सर। अच्छा, इंसेंटिव 2004 की बात बता रहा हूं मैं। 2003 में 2004 में। अच्छा, बाप रे, बहुत बड़ी बात है ये।
मैं यही बोल रहा हूं। और मुझे बैंकॉक का टिप मिला, मुझे सोनी एलसीडी टीवी मिला। ओके, तो ग्रेट ग्रेट, मतलब कांग्रेचुलेशन। हाँ, वो अभी हो गया 18-19 साल हो गया। लेकिन आप अगर सही सेल्स आदमी हो ना सर, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, मैं आपको ये भी बता दूं, आप लोकल Right. लैंग्वेज में बात करो, लेकिन आप जिस तरह से बात करते हो वो इंपॉर्टेंट है। आप मराठी में बात करो, आप हिंदी में बात करो, आप फ्रेंच में बात करो, आप कोंकणी में बात करो, ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में बात करो। आप मेरा प्रेजेंटेशन देखिए, मैंने 80% टाइम हिंदी में बात की है। करेक्ट। राइट? तो आप कैसे लोगों को अपील करते हो, कैसे बात करते हो, कैसे उनके दिल में छा जाते हो, वो इंपॉर्टेंट है। Yes. You are a champion. No, I'm not a champion, but I'm learning. I'm still learning, sir. I cannot say I'm a champion, but I'm still in the process of learning. जब भी मुझे कोई बुक मिलती है या कोई गूगल में आर्टिकल मिलता है, मैं पढ़ता रहता हूँ। Right. राइट सर? कोई क्वेश्चन? Right. आप कोई क्वेश्चन पूछिए, प्लीज पूछिए। यू आर नॉट रॉन्ग, प्लीज आस्क क्वेश्चन। Even your question doesn't mean, I mean, if a question doesn't have any head and tail, not a problem. I will answer. एक स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया है, प्रिया तिप्पन बोने ने आपके प्रेजेंटेशन के बारे में कमेंट पोस्ट किया है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, प्लीज बताइए। Very useful information and session, also very informative. Ratish sir is a very knowledgeable person and he offered a valuable information and tips. Presentation was very useful and clear and understandable session. Thank you very much, sir. Priya Tippan Mone, thank you very much for your feedback. Yes, मैं और खुश हूंगा अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर क्वेश्चन में मतलब नहीं है, मैं समझने की कोशिश करूंगा और आंसर करूंगा। हेलो सर। यस, बोलिए। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर? बढ़िया, बोलिए। सबसे पहले ये मेरा भाग्य है कि आपसे बात करने का मुझे मौका मिला। समझ लो सर, मैंने आफ्टर डिप्लोमा के बाद मेरी मेडिकल शॉप खोली। हाँ। और मेरी मेडिकल शॉप में कस्टमर आकर इंग्लिश या दूसरे उसकी लैंग्वेज में बात कर रहा हो। हाँ। और मुझे उसकी लैंग्वेज समझ में आती है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करना आता है, तब उस कंडीशन में मैं कैसे करूं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको बताता हूं, आप सुनिए। अगर मैं एक बार फ्रांस गया था 2008, 2007 या 2008 में, मुझे फ्रेंच नहीं आती थी सर। ओके। राइट? और वहां की लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी। ओके। लेकिन मैंने अपना काम करा लिया। ओके। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कभी लैंग्वेज शुड नॉट बी अ बैरियर। मतलब लैंग्वेज की वजह से आपको कभी शर्माना नहीं चाहिए। आप महाराष्ट्र में रहती हैं, आप इंडिया में रहती हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको इंग्लिश या फ्रेंच या कुछ आए, आप उसके क्वेश्चन को समझिए। इसलिए मैं बोलता हूं, आप यू नीड टू हैव अ एक्टिव लिसनिंग। आप लिसन सोचिए, और अगर आपको लगता है कि कोई उधर आपको हेल्प कर सकता है तो उसकी हेल्प ले लीजिए, नहीं तो उसको बहुत क्लियरली बोल दीजिए, सर आई एम नॉट, मैं आपको समझ नहीं पाती हूँ क्योंकि मुझे 2 लैंग्वेज आती है, एक तो हिंदी आती है और दूसरी मराठी आती है। अगर आप रुकिए, मैं किसी और को बुला देती हूँ 5 मिनट, और आप उसको समझा दीजिए। आप अपने कस्टमर से जितना भी फ्रैंक और ऑनेस्ट होंगे, उतना वो अप्रिशिएट करेंगे।
हो सकता है एक दो कस्टमर आपके छूट जाएं, डोंट वरी, उसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बस जो आपको आता है वो आपको आता है, उसमें आपको कोई शर्माने की बात थोड़ी है। नो प्रॉब्लम, दैट इज माय आंसर। करेक्ट करेक्ट इट इज करेक्ट, वेरी ट्रू। हर आदमी हर चीज नहीं जान सकता लाइफ में। मैं जब फ्रांस गया तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, उनको फ्रेंच चाहिए, तो इट्स ऑल राइट, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ So सर। don't worry, language should never be a barrier. आप हर काम, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आपके हर काम हो जाएगा, बिलीव मी, दैट्स इंपॉर्टेंट। गुड गुड गुड। वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई अप्रिशिएट द क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। और कोई क्वेश्चन पूछे? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सर, माय नेम इज मिस लक्ष्मी हेबे। सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ सर, बहुत बार ऐसे होता है कि कस्टमर मतलब फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते, या तो फिर वो प्रोडक्ट लेने से डरते हैं। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कुछ कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं, वो मुझे सेल करने हैं। अगर मैं वो किसी को रेकमेंड कर रही हूँ, लेट्स कंसिडर हेयर फॉल का, अगर मैं किसी को दे रही हूँ, तो डरते हैं कि यार मतलब अगर मैं ले लेता हूँ एंड अगर मेरा और ज्यादा हेयर फॉल हो गया, तो अगर ये मेरे ऊपर सूट नहीं किया, तो मतलब कोई नया प्रोडक्ट यूज करने से वो डरते हैं, तो फिर फास्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो उस कंडीशन में हम क्या करें ऐसे सिचुएशन में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, इसका मैं आपको आंसर देता हूं। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया है, कस्टमर तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा जब तक उसको ट्रस्ट नहीं है। देखिए, तो आपको क्या करना है, आपको उसका लिटरेचर अपने पास रखना है। जो इंसर्ट अंदर होता है, इनसे इंसर्ट बोलते हैं। सर, इसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि इस प्रोडक्ट को यूसेज करने के बाद आपका कोई भी हेयर फॉल नहीं होगा, या अगर हेयर फॉल होगा तो फर्स्ट 2 डेज होगा। तो उससे क्या फायदा होगा, वो आप नहीं बोल रहे हो, वो कंपनी का जो क्लेम है वो बोल रहा है। तीसरा, आप कह सकते हैं, एक क्लिनिकल स्टडी हुई थी सर, उसमें पाया गया कि जब लोगों ने ये 15 दिन प्रोडक्ट यूज किया गया, उसमें उन लोगों को कोई भी हेयर फॉल नहीं हुआ। तो ये क्लिनिकल स्टडी हुई है। 15 पॉपुलेशन 100 लोग थे, 100 लोगों में 30 लोग वुमेन थे और 30 लोग 60 लोग मेन थे। तो आप उससे क्या कर रहे हो, आप उसको कॉन्फिडेंस दे रहे हो लोगों को। अब जैसे ही आप कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट दोगे, आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, सेलिंग इज नॉट वन टाइम, एक बार में कोई सेलिंग नहीं होती है। इट टेक्स टाइम, सेलिंग टेक्स टाइम। और जब आप एक वही मैसेज बार बार बोलते रहते हैं, मैं अपने बेटे को बोलता हूं कि अभी गेमिंग कम करो कम करो, वही मैसेज जब सुनता रहता है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो कम कर देगा। उसका बेनिफिट बताता हूं, अगर तुम गेमिंग कम करोगे तो क्या फायदा है, गेमिंग ज्यादा करोगे तो क्या नुकसान है। तो आपको वही मैसेज बार बार अपने कस्टमर्स को बोलना पड़ेगा। ट्रू ट्रू, करेक्ट, राइट, विद एविडेंस। एविडेंस आप नहीं बोल रहे हो, ये आपका लिटरेचर बोल रहा है, आपका ये साइंस बोल रहा है। अगर आप बिना लिटरेचर साइंस बोलो तो उसको ट्रस्ट नहीं आ पाएगा, इसीलिए उसमें लिटरेचर और साइंस का बड़ा महत्व और इंपॉर्टेंस है। मैंने आपका क्वेश्चन आंसर किया? यस यस सर, थैंक यू सर। सर, और एक क्वेश्चन पूछा है हाँ, प्रिया तिपन मोने सर, if you can't speak French, then how you manage yourself in France without French language? yes, I made friends there who knew English. अच्छा, अरे, जैसे अगर अगर इंडिया में कोई आएगा और आपको हिंदी नहीं आती है, तो आप किसी को फ्रेंड बना लेंगे ना।
Yes. Simple. That is what I'm telling. There is a solution for every problem. Good. Right? Very Every very problem have a solution, provided you are ready to find a solution. great. Right? Yes, sir. Thank you. Any other Sir, questions anybody wants to ask? Godke Sadhna, sir, your speech very beautiful, clear, simple to understand. Excellent webinar, sir. Thank you. Thank you. This is the Thank you so feedback much. given by Godke Sadhna. Thank And you. Pratiksha Suryavanshi also written, your knowledge is very important and your explanation is very easy to understand. Fantastic. Great. Great. Great presentation today. Really, it's a very powerful. Power of selling means क्या है जान गए आज. बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं स्क्रीनशॉट निकाल के भेज दूंगा. प्लीज. मैं आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम चैलेंज इन टर्म्स ऑफ ये होता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेल डाल सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं. पूछे सर. हाँ? एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे. हाँ, आप 10 क्वेश्चन दीजिए सर. How to sell goods those people who can't trust. Those people who can't trust on us. देखिए सर, अगर वो ट्रस्ट आप पर नहीं करते हैं तो मैं होता तो मैं उनको गुड्स ट्रस्ट ही नहीं, वो मेरा मतलब है वो तो फिर वो कस्टमर ही नहीं है जो प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉप में 15 कस्टमर जाते हैं, उसमें से जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर बोलते हैं, जो कस्टमर को कुछ खरीदना होता है, वो 10% ही होते हैं. करेक्ट, तो करेक्ट. ये जरूरी नहीं है कि हर कस्टमर आप खरीद सकते हैं, नहीं तो हर प्रोडक्ट बिकता, हर प्रोडक्ट का सेल होता. अगर आपके पास 100 कस्टमर्स हैं तो आपका अगर स्ट्राइक रेट 5 या 10% भी है तो बहुत अच्छा है. डोंट वरी अबाउट वेदर दे आर ट्रस्टिंग और नॉट. नो, दैट्स नॉट योर जॉब. आप अपना जॉब ठीक से करें, वो इंपॉर्टेंट है. करेक्ट सर, करेक्ट. दैट इज व्हाट. अगर आप उनको आपका काम नहीं, आपका काम है आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अगर वो ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है. डोंट वरी, बी हैप्पी. करेक्ट सर, बहुत बढ़िया हुआ. मेरे ख्याल से कंक्लूजन करेंगे अभी. Yes. If there are no questions. So I'm Namrata Lade. Yes. I have a question. So मुझे एक प्रोडक्ट बेचना है और उसके बारे में किसी ने पहले ही रूमर फैला दी हो कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट गुड, और फिर भी मुझे वो प्रोडक्ट बेचना है, तो कैन आई सेल द प्रोडक्ट बाय माय स्किल्स? ओके. तो मतलब आपका नाम क्या है? नम्रता लादे. हाँ, नम्रता लादे सर. नम्रता, आप कन्विंस हो, मैं पहले आपसे पूछूंगा, आप कन्विंस हो कि वो प्रोडक्ट अच्छा है? यस सर. अगर आप कन्विंस हो तो डोंट वरी. लेकिन अगर आप ही कन्विंस नहीं हो कि वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो आप वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगी. याद रखना. नो सर, आई एम 100% कन्विंस्ड दैट So you प्रोडक्ट इज don't गुड. worry. देखो, जैसे रूमर आता है कि कोई रूमर आता है इस प्रोडक्ट को खाने के बाद इतना लोग मर गए, लेकिन कुछ रूमर्स होते हैं और कुछ सच्चाई होती है. अगर उसमें सच्चाई है तो उसमें प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, वो आप नहीं बेच पाओगी. लेकिन अगर वो रूमर है और लोग उसको रूमर को फैलाना चाह रहे हैं तो आप उसको बता सकते हो थ्रू लिटरेचर, थ्रू साइंस, थ्रू सेलिंग कि सर वो जो क्लेम था वो इसलिए गलत है क्योंकि इस प्रोडक्ट में ऐसा कोई सा इंग्रेडिएंट नहीं है और ऐसा कोई चीज नहीं है जिससे ये प्रोडक्ट हार्म कर सकते हैं. ये एक अफवाह है और मेरे हिसाब से ये गलत अफवाह है, क्योंकि
ये प्रोडक्ट हजारों लोगों ने यूज किया है और ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं आया है जिसके बारे में वो र्यूमर है। आपको वैसे बात करना पड़ेगा नम्रता। Yes, सर sir. एक लास्ट क्वेश्चन है, हम्म, Kauri Santosh is asking, sir, every customer is not good with their behavior. If that type of the customers are coming in our shop, what we can do that time? What attitude we have that time? ऑलवेज रिमेम्बर एंड मेरे हिसाब से मैंने भी ये किया है, अगर कोई मुझसे सही तरह से बात नहीं कर रहा है या मुझसे मिसबिहेव कर रहा है, आप एक बार उसे बहुत प्यार से बोलिए, सर दिस इज नॉट द राइट वे। अगर वो तब भी नहीं मान रहा है, देन यू नीड टू इन्फॉर्म हिम, सर आपको मैंने रिक्वेस्ट किया है, 2 बार बोला है, आप अपना बिहेवियर नहीं चेंज कर रहे हैं, मैं आपकी जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। 2-3 बार उसे आप टॉलरेट कीजिए, प्यार से बात कीजिए, तब भी नहीं मान रहा है और वो रिपीटेड आपकी शॉप में आ रहा है, देन यू नीड टू कंप्लेन इट टू द राइट पर्सन, एंड द राइट पर्सन कैन बी एनीबडी। Yes, sir. तो with this I think we will conclude. यस। टाइम बहुत हो गया और सर ने बहुत सारे क्वेश्चन ले लिया और ओवरऑल प्रेजेंटेशन वाज एक्सीलेंट, 5 out of 10 marks. थैंक यू, थैंक यू। Still the questions are coming, but we have to नहीं stop नहीं, somewhere. अगर है तो मैं आंसर कर लूंगा, अगर एक है। Sir, from my side, one line. मराठी मध्ये लई भारी झाले म्हणून सांगा म्हणते मुलं. हाँ पूजा, यू वांट टू आस्क? Sir, one line I have to say, sir. From आई एम नॉट एबल टू हियर, थोड़ा लाउड। आवाज येत नाही. one line I have to say for you, sir. टेल मी। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल में आए हैं। आज वो हमारी महफिल में आए हैं। Beautiful, very nice, very nice. Thank you so much for that compliment. Thank you so much. See, this is a skill. This is a skill. अगर आप कोई कस्टमर को जो है उसको आप प्यार से बात कर ले तो वो आपको मतलब he will feel that this salesperson is so nice. This is a skill, right? Yes. Thank you so much. बहुत बढ़िया, बहुत Thank you बढ़िया, so- बहुत बढ़िया। Thank सर you. मराठी में क्या बोलते हैं, जो स्टेशन अच्छा होता है ना, बहुत बढ़िया बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, तो इसको मराठी में ना लय भारी। लय भारी। ओके। लय भारी। लय भारी। थैंक यू सो मच। क्या है कि लय भारी स्टेशन। लय भारी, फैंटास्टिक। थैंक यू सो This मच। is the good word for you. थैंक यू। So tomorrow again we will make the great session. Yes, you will learn something new tomorrow. अभी तक सेशन में फिलहाल 120 स्टूडेंट्स है, तो Great. बहुत सारे स्टूडेंट आज पार्टिसिपेट किए हैं और बहुत अच्छा हो गया, रियली बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कल के सेशन के बाद में हम क्या करेंगे, थोड़ा जो ट्रेनिंग के जो है ना, प्लेसमेंट ट्रेनिंग का जो था ना अपना वो मॉड्यूल के लिए 5 मिनट निकाल दीजिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सर उसमें आपको आधा घंटा एक सेपरेट सेशन रखना पड़ेगा। नहीं, मैं बच्चों के लिए रखेंगे क्या फिर? नहीं, पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा सर। मैं क्या बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट अगर बच्चों के साथ भी डिस्कस हो गया तो बच्चों को इन्वॉल्व कर, मैं उनको 5 मिनट का एक समरी दे दूंगा। बस वो ऐसा करेंगे। तो मुझे क्या है कि स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज करके ट्रेनिंग, उसकी जो स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी उसमें लिमिटेड स्टूडेंट्स रहेंगे 10-20, और उनको डेवलप करके चैंपियन बनाएंगे रतीश सर के जैसे। यस, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। मनी मेकिंग पर्सन बनाना है इमीडिएटली। यस, राइट सर। या सर वो स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा जो कमेंट्स फीडबैक का है। श्योर। ओके, थैंक पूजा, you can conclude this session. Okay, sir. Yes.
Thank you very much, sir. A very, very, very great session. There are no words, sir. How would we appreciate you? And you explained very, very nice, sir, regarding the selling skills. And really, in your explanation, there is a real power, sir. Moral only is that for all participants, that a satisfied customer is a best business strategy. All the entire session was too interesting and very informative, and express my special thanks to all the delegates for their present. And thank you very much, sir. We will meet tomorrow. Have a good day. Thank you, Pooja. Thank you, sir, and thank you, audience, for your patience learning. आप मेरी गुजारिश है और मैं खुश होऊंगा कि आप इसे implement करो. कोई problem है, we are here to solve. Please implement, and you will be the champion, next sales champion from this great college. Take care. Have a wonderful time and enjoy yourself. Bye-bye. At the last, I will request all the participants to please follow sir on LinkedIn. Yes, 100%. Huh? Yes, yes. Sir, one selfie, sir. Yes. Thank you. So all participants on their